we conduct in SPSS. So we need to understand the theory of the moderation analysis first. Otherwise, it will be not very easier for us to understand the output of the analysis. So let's start the beginning of the topic, which is about moderation. I have developed some of the table of content in which we would discuss introduction of moderation, how we use moderation, what is the difference between mediation and moderation, which every one of us need to know and understand. What are some assumptions of moderation and how do we run moderation in SPSS and how do we interpret the result. Okay, now move on to the introduction of moderation. It is the type of the regression analysis that explains the impact of IV on DV with the impact of moderation. Keep it in mind कि moderation analysis जो है it always impact the IV first and then the overall effect of the whole model or the conceptual diagram would be noticed. It has an interaction effect, means there are three interactions, three possible outcome which could be noticed. तो हमें उनको भी जहन में रखना है. And other thing is moderation analysis explain the condition under which IV is related to dependent variable. Why we use moderation? Because in current scenario the demand of the research is to use some in-depth analysis, and we can also say okay, we use moderation analysis to know the relationship that could be increase, decrease or reverse the presence of moderator. Why we have to use moderation? Why we have to use moderator? Can't we use the simple relationship? तो वो तो बहुत ही ईजी है जो कि हम अब तक करते हुए भी आ रहे हैं, लेकिन मॉडरेशन की प्रेजेंस से हमारे रिजल्ट एनालिसिस थोड़े से ज़्यादा इन डेप्थ हो जाते हैं एंड वी वुड बी एबल टू प्रिडिक्ट मोर एक्यूरेटली कि जिससे हम अपने रिजल्ट्स को, अपने जो भी हमारा रिलेशनशिप है उसको ज़्यादा अच्छे से डिफाइन कर सकें. तो ये तो एक चीज़ हो गई इसकी इम्पोर्टेंस की. द कॉन्सेप्चुअल डायग्राम ऑफ मॉडरेशन एनालिसिस लुक्स लाइक, let's suppose कि y is your dependent variable, x is your independent, and the moderating variable is m and w मैंने इसलिए लिखा है कि SPSS के अंदर it represent from w. तो जो इंटरेक्शन होगी इंडिपेंडेंट साइड से वो होगी x के थ्रू, यानी x का क्या रिलेशन है m और या w के साथ, मॉडरेटर के साथ, एंड हाउ इट इम्पैक्ट्स ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो हाउ दिस थिंग विल गो ऑन. The difference between mediation and moderation is in mediation, the time spent of the variable is very important. For example, if we are talking about training of an employee or in any office, कोई भी training चल रही है, तो the results of the training, the outcome of the training will not show up right after finishing the training. It will take at least a month, a week, or 2-3 months to increase the productivity, to change the behavior of the employees or the trainees. तो वो कुछ ना कुछ टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है जो कि मेडिएशन में यूज़ होता है. एंड मेडिएशन के अंदर हमारे पास हमेशा कॉजल रिलेशनशिप होता है, यानी कोई एक कॉज होता है और उसके इफेक्ट्स होते हैं. तो कॉज इज बेसिकली द प्रॉब्लम एरिया और इफेक्ट्स जो हैं वो उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, एज वी डिस्कस इन द क्लास इन ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है, जबकि इसका बिल्कुल ही अपोजिट है मॉडरेशन एनालिसिस. इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी टाइम स्पैन इन इट, नो कॉजल रिलेशनशिप. और फॉर एग्जांपल इसमें हम मॉडरेटर को इस तरह से पहचान सकते हैं कि एज हो गया, जेंडर हो गई, या कोई ऐसा वेरिएबल जो कि नॉमिनल भी है और जो कि करंटली रिसेंट एरा में प्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉकिंग अबाउट के कंप्यूटर स्किल्स जो हैं वो यंगर लोगों के बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं एज कम्पेयर टू एल्डरली पीपल. तो हम एक रेंज दे देंगे कि यंगर पीपल से हमारा मतलब है अराउंड 20 से 35 तक, और एल्डरली पीपल से हमारा मतलब है अबव 50 एंड 60 वट एवर. ठीक है, तो जब हम ये रेंज दे देंगे तो फिर उसके बाद हमारे पास ईजी हो जाएगा कि एल्डरली के अंदर स्लोअर है थोड़ा सा एडॉप्शन प्रोसेस और यंगर के अंदर थोड़ा फास्ट है. तो जो एज फैक्टर आएगा या जेंडर आएगा, इट डज नॉट हैज़ नथिंग टू डू विद द टाइम लैप्स. ठीक है, जो एज है करंट उस ग्रुप की वो है. ठीक है, अनदर थिंग इज टाइप ऑफ इम्पैक्ट्स और इंटरेक्शन. देयर आर 3 आउटकम्स वी कैन find through moderation. First one is enhancing. Under enhancing, increased level of moderation, M represent moderation here, would increase the effect of IV, क्योंकि moderation analysis always impact from the IV side
दैट इज वाई इनहेंसिंग के अंडर जब हमारे पास मॉडरेशन का इम्पैक्ट इंक्रीज होता है या मॉडरेटर का इम्पैक्ट इंक्रीज होता है तो ओवरऑल आईवी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा उसका डेवलप हो जाता है. द अदर इफेक्ट इज बफरिंग. द इंक्रीज लेवल ऑफ मॉडरेशन वुड डिक्रीज द इम्पैक्ट ऑफ आईवी. बफर कर दिया ना उसने, यानी आईवी को तो थोड़ा डाउन कर दिया, लेकिन मॉडरेटर इतना हेवी इम्पैक्ट डाल रहा है कि ओवरऑल वही बीच में ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रहा होगा हमें. ठीक है. द थर्ड वन इज द एंटागोनिस्टिक. दैट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ एम would reverse the impact of independent variable. अब हमने एक रिलेशनशिप बनाया था, लेकिन because of the presence of m the relationship is totally been reversed. ठीक है. तो ये तो हमारे पास थी एक छोटी सी समझो उसकी theoretical background. Let's move on to the SPSS side. SPSS के अंदर यहाँ पर एक मैंने 85, यह मैं आपको दिखा देती हूँ, 85 के करीब मेरे पास डाटा सेट है और 3 वेरिएबल लिए हैं मैंने. इसमें एक एज है, जेंडर है, कंप्यूटर स्किल एंड सैलरी है. ठीक है. लेट्स सपोज कि हमारा हाइपोथेसिस बन रहा है कि हमारा जो सैलरी है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कंप्यूटर स्किल्स जो हैं किसी भी इंसान के पास होना जो है वो उसकी सैलरी के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डालते हैं. इफ़ यू हैव अ कंप्यूटर स्किल्स तो या ट्रेनिंग आपकी अच्छी हुई हुई है तो फिर योर सैलरी वुड बी मोर एज कम्पेयर टू द पर्सन हु डज नॉट हैव एनी कंप्यूटर स्किल. ठीक है. इसमें हमने दो मॉडरेटर को इंडक्ट किया है, एज को और जेंडर को. ठीक. नाउ मूव ऑन टू द एनालाइज, go on to the regression. ठीक है. regression के बाद हम यहाँ पर आएंगे process macro के ऊपर. as I told you guys earlier कि you have to download process macro in your SPSS. ये एक add-on है, एक tool है, छोटा सा add-in समझ लो, वो easily open हो जाती है. थोड़ा सा आप मैंने link भी दिया हुआ है कि कहाँ से वो open हो जाती है, आप मेरे चैनल पर देखिएगा, उसका लिंक भी दिया हुआ है, गिवन है. ठीक है. हमने प्रोसेस मैक्रो को ओपन किया. अच्छा, प्रोसेस मैक्रो के डिफरेंट वर्जन है. 2.6.1 के अंदर डिफरेंट आपके पास विंडो खुलेगी एज कम्पेयर टू एज आई हैव 3.5, तो मेरे पास ज़रा डिफरेंट सिनेरियो शो हो रहा है. अच्छा, हमारा जो हाइपोथेसिस था वो ये था कि सैलरी जो था वो था हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल. तो वाई वेरिएबल इज ऑलवेज हियर डिपेंडेंट वेरिएबल. कंप्यूटर स्किल्स आर माई independent variable. Up we have mediators window here and covariate windows here and moderators right here. ठीक है. तो अब लेट सपोज कि हम बात कर लेते हैं जेंडर की. ठीक है. और हमने इसको यहाँ पर लेकर आ गए. ठीक है. यहाँ पर बाकी जो ऑप्शंस दिए हुए, मॉडल नंबर 1 विल ऑलवेज बी यूज्ड. अच्छा, मॉडल नंबर 1 इज इजियर टू इंटरप्रेट और ज़्यादातर उसी वक्त यूज़ होता है जो कि हमारे पास जब एक ही मॉडरेटर होता है. आई वुड सजेस्ट कि आप लोग वन बाय वन, अगर आपके पास एक से ज़्यादा मॉडरेटर मौजूद हैं तो आप वन बाय वन सबका अलग अलग कर लें, इंस्टेड कि आप कोई और मॉडल नंबर यूज़ करें एंड देन यू विल बी हैविंग वेरी हेफ्टी टाइप ऑफ आउटपुट. तो फिर आप उसके वक्त उसको आपको इंटरप्रेट करते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है. अब लेट्स मूव ऑन टू ऑप्शन. ठीक है. तो मॉडल नंबर 1 हो गया. कॉन्फिडेंस इंटरवल शुड बी 95%. number bootstrap should be 5000 and move on to the option side. यहाँ पर आपको क्या करना है, विजुअलाइजिंग जनरेट कोड फॉर विजुअलाइजिंग इंटरेक्शन. अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो फिर हमारे पास ग्राफ बनाने की बड़ी आसानी हो जाएगी. हमें एक्सेल वगैरह पर कहीं पर भी मूव नहीं करना पड़ेगा. इजीली हम यहीं से भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी देख सकते हैं. ठीक है. और उसके बाद हमें और इसमें किसी चीज़ पर भी क्लिक नहीं करना, नन करना है. हेट्रोसिडेस्किटी पे डेसिमल प्लेसेस 4 भी हो सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं. हमने 3 कर दी. चलें, नॉन सेंटरिंग ही रहने दीजिएगा. यहाँ पर p वैल्यू लेस देन 0.10 है. आई वुड सजेस्ट कि 0.05 पे कर लें. इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यहाँ पर ये है कि यू हैव टू क्लिक -1 SD स्टैंडर्ड डिवीजन मीन +1 स्टैंडर्ड डिवीजन. ठीक है. एंड फॉर मॉडरेशन वी हैव टू हैव सेलेक्ट दिस वन, जॉनसन नेमन आउटपुट. ठीक है. कंटिन्यू आपने कर दिया. मल्टी कैटेगोरिकल पर आ जाएं एंड वी हैव नथिंग टू डू विद दैट. लॉन्ग वेरिएबल्स नेम, नथिंग एल्स. ठीक है. जस्ट क्लिक ओके. नाउ वी विल हैव सम आउटपुट. लेट्स वेट व्हाट कम्स अप. थोड़ा सा इसमें प्रोसेस करने में इसको टाइम लगता है क्योंकि ये प्रोसेस मैक्रो जो है वो अपने टाइम से ही आता है. देखें अभी आउटपुट इसकी आ गई. अब यहाँ से हम वन बाय वन हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. द फर्स्ट कॉलम, आई मीन द रो, paragraph is talking about model number 1. Your dependent variable is salary and
आपका जो इंडिपेंडेंट है वो कंप्यूटर स्किल है। W, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि SPSS के अंदर W के नाम से मॉडरेटर शो होगा, तो जेंडर है यहाँ पर। सैम्पल साइज इज 84। ठीक है, माई मॉडल समरी इज टॉकिंग अबाउट आर स्क्वायर जो है 26.1% वो बता रहा है कि थोड़ा सा चेंज आया है, जबकि मेरी P वैल्यू जो है वो 0.000 है। इट मीन्स कि मेरा मॉडल बिल्कुल फिट है विदाउट इंटरेक्शन। ठीक है, या अगर हम इंटरेक्शन के साथ भी देखें, लेकिन अब हमें एग्जैक्टली ये मालूम करना है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ माय मॉडरेशन, मॉडरेटर वेरिएबल, या मॉडरेशन का क्या इम्पैक्ट आया। तो आपके पास यहाँ पर देखिएगा ये इंटरेक्शन की एक रो दी हुई है। मैं इस पर डबल क्लिक करूंगी, जैसे ही हमने डबल क्लिक किया तो ये खुद ही हो जाता है सिलेक्ट। ठीक है, और यहाँ से देखें ये डॉटेड लाइन आ रही है ना, यहाँ पर शो हो रही है, इट मीन्स के दिस इज एन एडिटेबल फॉर्म। तो यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके आप लोगों को बता देती हूँ कि व्हाट डज इट मीन। हमने इसको बोल्ड भी कर दिया है। ठीक है, तो ये जो बोल्डेड आपके पास नजर आ रही है ना लाइन, ये शो कर रही है आपका इंटरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप ये देख लें कि आपके जेंडर का क्या आ रहा था, 0.169, दैट वाज इनसिग्निफिकेंट ना, 0.05 से तो बड़ा ही है ये। और ओवरऑल इसका इंटरेक्शन कितना आ रहा है, 0.122। तो इसका मतलब है कि जेंडर जो है यहाँ पर एज अ मॉडरेटर अच्छा सूट नहीं कर रहा है, इसका कोई रोल नहीं है। एंड आफ्टर मॉडरेशन हमारी P वैल्यू ही 0.122 हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज और है, जो मैंने आपसे कहा था कि अगर आपको ग्राफिकल, तो ये आपका मॉडरेशन का इफेक्ट इस तरह से आ गया। आई वुड सजेस्ट कि इफ यू हैव 2 मॉडरेटर और 3 मॉडरेटर एंड यू आर अप्लाइंग इट टू मल्टीपल IVs एंड DVs टू रन दिस टेस्ट सेपरेटली। अदर मॉडल्स भी हैं जो कि आपके पास प्रोसेस मैक्रो का, एक मैंने हैंड आउट का भी आपको लिंक दिया हुआ है, आप उससे सजेस्ट करके उसमें से अपना मॉडल नंबर ढूंढ सकते हैं। लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उनके थ्रू करें, उससे फिर आउटपुट इतनी हेफ्टी और डिफिकल्ट जनरेट होगी कि फिर उसको इंटरप्रेट करना मसला हो जाएगा। तो गो वन बाय वन, दैट वुड बी फाइन। ठीक है, अच्छा अब आपको क्या करना है कि आपको चाहिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। लेट सपोज हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है डाटा फॉर विजुअलाइजिंग द कंडीशनल इफेक्ट ऑफ द फोकल प्रिडिक्टर। हम यहाँ से क्या करेंगे कि इस चीज को हम कर लेंगे कॉपी। कीप इट इन माइंड कि ये उस वक्त तक कॉपी नहीं होगा जब तक आप इस पूरी आउटपुट को डबल क्लिक नहीं करेंगे और आपके साइड्स में डॉटेड लाइन ना शो हो रही हो। मैंने यहाँ से इसको Ctrl+C किया एंड देन आई गो ऑन फाइल, न्यू, एंड देन ओपन सेंटेक्स। ठीक है, जब हमने सेंटेक्स पे क्लिक किया तो हमारे पास सेंटेक्स की एक फाइल खुद ब खुद ओपन हो गई। यहाँ पर हमने Ctrl+V कर दिया। ठीक है, जब Ctrl+V कर दिया तो सारी चीजें कॉपी पेस्ट हो गई। नाउ अगेन आई हैव टू सिलेक्ट ऑल। ठीक है, इसको सारे को सिलेक्ट करके यहाँ पर एक प्ले का बटन दिया हुआ है, दिस इज अबाउट रन सिलेक्शन। अब मैंने यहाँ पर रन जैसे ही दिया है उसको, तो मेरे पास यहाँ पर देखें ग्राफ बनकर खुद ब खुद आ गए। ठीक है, एज माई मॉडरेटर इम्पैक्ट वॉज इनसिग्निफिकेंट, तो अब मुझे यहाँ पर लाइन्स भी चाहिए होंगी ऑब्वियसली। मैं इसको डबल सेलेक्ट करूंगी, डबल क्लिक करूंगी तो मेरे पास देखें एक छोटी सी विंडो खुल गई है, और उसके बाद वो मुझे बता रहा है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, एक्स एक्सिस पे क्या है एंड वाई पे क्या है एंड जेंडर साइज क्या है। यहाँ पर आप ये देखिएगा कि ऑप्शंस एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट्स पे जाएं और आप डेटा लेबल मोड कर लें, शो डाटा कर लें, फिट लाइन एट टोटल, फिट लाइन एट सब ग्रुप, इंटरपोलेशन लाइन्स, इंटरपोलेशन लाइन के ऊपर क्लिक करें। जब आप इंटरपोलेशन लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी एक पिक्टोरियल डायग्राम आराम से निकल कर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, सेलेक्ट इमेज भी करके कर सकते हैं। ये मैंने इसको काफ़ी ओपन कर दिया है। ठीक है, ताकि आप लोगों को आराम से नज़र आए। इसको पीछे कर देते हैं और यहाँ पर हम आके देख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या निकल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने ग्राफ को फर्दर भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप डिफरेंट कलर्स की भी इसमें स्कीम दे सकते हैं, वट एवर यू लाइक, बार चार्ट चाहिए, वट एवर यू फील लाइक कि आप अपने रिसर्च पेपर को कितना ज़्यादा हेफ्टी और कितना अच्छा बनाना चाहते हैं। तो विजुअलाइजिंग के ऊपर तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो इस तरह से आप अपने मॉडरेशन एनालिसिस को रन करें, लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज यू मस्ट हैव प्रोसेस मैक्रो। ठीक है, उसको बास स्टूडेंट्स ने मुझे रिपोर्ट किया कि इजीली दे कैन फाइंड इट एंड दे कैन डाउनलोड इट, लेकिन कुछ ने ये भी रिपोर्ट किया कि वो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था और बहुत ज़्यादा ट्रबल उनको हो रही थी।
तो आइदर यू कैन कॉन्टैक्ट मी और जस्ट गो एंड आस्क योर फ्रेंड्स जिनके पास है, उनको बहुत इजीली हो गया है, या यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑल्सो, ठीक है, तो मैं आपको उसमें हेल्प कर सकती हूँ। तो होपफुली ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजीली हो जाता है, बस थोड़ी सी चीज़ों का मालूम करना होता है। अगर आप लोगों को ये इससे बेनिफिट हो रहा है या कहीं पर प्रॉब्लम भी हो रही है तो यू कैन कांटेक्ट मी, ठीक है, ऑन माय आंसर कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, या यू कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल अबाउट मॉडरेशन एनालिसिस, और होपफुली ये थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और, मॉडरेशन एनालिसिस के अंदर जो हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ना, दैट वुड बी स्केल वेरिएबल, ठीक है, उसको स्केल में ही रखिएगा। और हमारा जो भी वो होगा मॉडरेटर आएगा, वो स्केल में भी हो सकता है, वो नॉमिनल भी हो सकता है, वो और दूसरा रेटिंग में भी हो सकता है, ठीक है। तो आइदर वे में हम इसको इजीली कर सकते हैं, उससे आप परेशान मत होइएगा कि ये स्केल में नहीं है। इवन अगर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट भी नॉमिनल नहीं है, कैटेगोरिकल उसमें आ रहे हैं, तो भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो उस पर परेशान मत होइएगा। होपफुली यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। अदर देन दैट, इसके अलावा कोई मसला हो तो फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए।